Am Yes, I ma'am. audible? Okay, all right. So today now it's time for your physics class, and from last week and from the last day we are talking about the laser physics, right? Or laser physics में I told you about the some basic terms regarding the laser. So in the last lecture we discussed about the phenomena of the radiation with matter कि when any radiation try to interact with matter then what will happen. तो उसमें हमने three different phenomena की बात की थी. That was about induced or you can say stimulated absorption. Second was the spontaneous emission, and third was the stimulated emission, right? And after that I told you that after that just a minute. Okay, right. After that, I told you that this laser is based on the principle of stimulated emission. और stimulated emission को मैंने completely define किया था कि how to define the term stimulated emission, and this laser is based on the principle of stimulated emission. And after that we discuss some basic term like population inversion I discussed in the previous class, and uh, I discuss about different types of laser which are available in the market. So in today class we will discuss about the Einstein coefficient, and then we will discuss the different components of the laser, because different components of the laser are very important, because in the coming lectures we will discuss about different types of laser which are available in market like ruby laser. We will discuss about gas laser like helium neon laser, CO2 laser. So to discuss these different types of laser, first we need to know कि आपका जो लेजर है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस लेजर, कि उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं. विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज कंपोनेंट्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लेजर. So these components of the laser we will discuss in today class. But before start to discuss the different components of the laser, there is one mathematical relation regarding the Einstein coefficient and Einstein relation that I would like to discuss with you. So basically this Einstein coefficient and Einstein relation is based on three different processes which we discussed in the previous class. That was the rate of absorption per unit volume, which I told you this is a mathematical term which I told you in the previous class. And next was the rate of or you can say ratio of spontaneous emission per unit volume, which I discussed in previous class also. And next was the rate of stimulated emission per unit volume. Do do you remember these three relations which we discussed in the previous class? Tell me yes or no. Yes, students, बताइए. Do you remember these three relations? Because in the previous class we discussed three different interaction processes. First was the stimulated absorption. तो stimulated absorption के अंदर हमने एक mathematical equation discuss की थी, and after that we discuss one mathematical relation. यहाँ पे N1 क्या था? N1 was the N1 was the number of atoms present in the ground state, और N2 क्या था? Number of atoms present in the excited state, right? और ये जो थ्री डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट थे B12, A21 एंड B21, दीज वर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इनको हमने क्या कहा था? दीज आर द प्रोबेबिलिटी फंक्शन पर यूनिट टाइम, कि इनको हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन के नाम से डिफाइन किया था, B12, A21 एंड B21. तो ये जो तीनों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैं, इनको यू कैन कॉल आइंस्टाइन कांस्टेंट. ये तीनों जो हैं ये हमारे पास आइंस्टाइन कांस्टेंट है. एंड इन टुडे क्लास we will discuss the relation between these three constant, because the topic is we want to find the relation between Einstein relations or Einstein coefficient. So what are the Einstein coefficient in these three mathematical relation? So B12, A21 and B21, these three are the Einstein coefficient, and we want to drive the relation between these three Einstein relation. But you should know about these three mathematical term which we discussed in the previous class. तो यहाँ पे जो rho था that was the density,
of the induced incident photon, क्योंकि हम we are providing the energy to the atom which is present in the ground state, तभी तो वो आपका that was going to excited state. अगर हम absorption की बात कर रहे थे तो इतना हमने density का फोटोन इंसिडेंट करवाया था एंड इट एब्जॉर्ब दैट रेडिएशन एंड जंप टू द एक्साइटेड स्टेट. और ये N1 क्या था? N1 वाज द population of the atom in the ground state, and here N2 was the population in the excited state. And this was the this mathematical relation indicates the process of spontaneous emission, and this mathematical relation represent the process of stimulated emission, right? So these are three mathematical relation, and here these are three Einstein coefficient. Now at thermal equilibrium, what will happen? At thermal equilibrium, that rate of absorption will be equal to rate of emission, because absorption means atom is a jump from lower energy state to higher energy state, right? And in the rate of emission, atom will come back to its ground state, because excited state don't have so much lifetime so that atom can stay here for a long time. So atom will come back to its ground state by two different processes which I discussed yesterday. कि first process will be spontaneous emission and second was the stimulated emission. तो rate of absorption के अंदर हमारे पास only ये mathematical relation रहेगा, and in the case of emission we have two different types of emission. First is the spontaneous emission and second is the stimulated emission, right? So at thermal equilibrium both rate will be equal, and if we equate these terms, so what we will get? These terms will be equal. This is a rate of stimulated absorption, and these two are the rate of this term indicates the rate of spontaneous emission, and this term indicates the rate of stimulated emission. And we have two types of emission, so these two terms become added. And on the left hand side we have process of stimulated absorption, right? Now when we equate these two terms, and in the next point we can collect the density term on the left hand side. तो ये this one is your density term, इसके अंदर आपका density function आ रहा rho, and this term also include density term. तो इन दोनों को हमने collect कर लिया on the left hand side, और right hand side के अंदर हमने इस term को as it is रखा है, right? Now if we further solve mathematically this equation, so we get density is equal to this term is in the numerator and this term become in the denominator, right? This is totally a mathematics. And after that, in the next point, what in the next step what we will do, here if we take n2 from denominator, from the denominator we will take the common. तो यहाँ से अगर हम इस n2 को so what will happen here, we will get B12. Actually ये जो step किया है it consists of two steps. तो दो steps को करने के बाद you will get this term. तो पहले step में तो what you will do, you will take common n2 common from this term from denominator. तो यहाँ से अगर हम n2 को common लेंगे तो you will get B12 n1 divided by n2 minus B21, right? And n2 on the numerator become cancelled out with n2 on the denominator. And after that you will take common B21. B21 को अगर हम common लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, that is B12 divided by B21, यहाँ पे N1 divided by N2 और -1. ये जो आपका -1 completely नहीं आएगा, -1 आपका denominator में आएगा. यहाँ पे इस स्लाइड में थोड़ा मिस्टेक है, तो that will be in the denominator. denominator के अंदर हमारा -1 आएगा. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. You can suppose this is equation 1, that is a density function. Now we will find the relation between N1 and N2, ratio of N1 and N2. तो N1 हमने क्या बोला था, N1 is the number of atoms present in the ground state and N2 is the number of atoms present in the excited state. And this is a mathematical relation of population density in terms of temperature.
there is one mathematical derivation, but that is not a part of your syllabus. तो ये आपका एक exponential function पे depend करता है. अगर हम इसको temperature के साथ देखें, तो जो n1 होगा that is equal to n naught into e की power minus E1 upon kt, because E1 is the energy of this ground state. And if I talk for n2, तो यहाँ पे E1 will be replaced with E2, because E2 is the energy एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे दोनों रिलेशंस में क्या डिफरेंस आएगा कि अगर हम n1 की बात कर रहे हैं देन इट विल हैव E1 एनर्जी, and if we talk for n2 then it will have energy E2, right? And this is a exponential function, that is E2 by kt, where k is the temperature, sorry, T is the temperature and k is the Boltzmann constant. And we want to find the ratio between A1 N1 and N2. तो यहाँ पे N1 by N2 का जो रेशियो आएगा that become e की पावर E2 minus E1 divided by kt. When we divide these two terms, so you will get this mathematical relation. Now we further solve this equation. So this density function become equal to A21 divided by B21, and here अगर हम इसको बाहर लिख दे रहे हैं तो on the numerator यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, and in the denominator we will have B12 divided by B21, and here N1 by N2 को हमने replace कर दिया with e की power E2 minus E1 divided by kt minus 1, right? So till now, do you have any doubt in this mathematical derivation? Please ask. This is a totally mathematics. When you will try to solve with pen and copy, so you are able to solve this. किसी point में do you have any doubts? Students, tell me please. मैम ये नीचे e की पावर E1 माइनस E2 अपॉन kt क्यों दे रखा है? यहाँ पे जब हम इसको रेशियो करेंगे तो E1 e की पावर E2 माइनस E1 होना चाहिए मैम नीचे. e की पावर E2 minus E1. Yes, ma'am. दिस इज अ मिस्टेक. यहाँ पे E2 माइनस E1 आएगा. यू आर राइट, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो हमने ये E2 बिकम पॉजिटिव एंड E1 इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो इट बिकम, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस E1 माइनस, यहाँ पे हम नेगेटिव को बाहर लेके E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, या यू कैन राइट E2 माइनस E1. यू आर राइट. ये मैं एडिट करना भूल गई, तो इट बिकम E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई kt, और ये सारा जो 1 है ये यहाँ पे -1 रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा. यहाँ पे भी इसमें एक मिस्टेक है इस मैथमेटिकल डेरिवेशन में, तो यू कैन एडिट बाय योरसेल्फ. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. तो वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस आइंस्टाइन कोफिशिएंट, क्योंकि A इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट, B इज आल्सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट, तो ये भी आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट है. तो टू फर्दर सोल्व दिस मैथमेटिकल रिलेशन, ये आपका इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, एंड सपोज यू आर दिस इज इक्वेशन सेकंड. तो व्हेन वी सोल्व फर्दर दिस इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे E2 माइनस E1 हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज द एनर्जी h म्यू, दैट इज द एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट, राइट? कल हमने जो डिस्कस किया था कि E1 इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू h म्यू. तो यहाँ पे इस टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया, दैट इज h म्यू अपॉन kt, जो हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं. तो E2 minus E1 become equal to h म्यू divided by kt, और what will be value of these two terms? यहाँ पे जो B12 है, when you go back to your previous lecture, तो B12 आपके पास क्या था? B12 was the Einstein coefficient for एमिशन. यहाँ पे 1 से 2 पे जा रहा है, सॉरी एब्जॉर्प्शन. ये आपके पास स्टिमुलेटेड और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था. कल मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे 1 और पहले हम 1 लिख रहे हैं देन वी आर राइटिंग 2, तो व्हाट डज इट मीन? वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन की लेवल 1 से लेवल 2 में आपका आइटम जा रहा है, एंड इफ वी हैव 2 to 1 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एमिशन, राइट? डू यू रिमेंबर दीस थिंग्स? यस मैम. कि B12 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन्स आपके पास जो एटम है दैट इज गोइंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2. लेवल 1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड स्टेट एंड लेवल 2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्साइटेड स्टेट. तो अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो क्या हो रहा है?
एब्जॉर्प्शन की हेल्प से जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करा? दिस टर्म इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम is coming back from level 2 to level 1. Initially that is present in the excited state, then it will come back to its ground state with, so this process indicates the emission। और B21 का मतलब क्या होगा कि we are talking about the stimulated emission। तो ये आपके पास stimulated absorption है and this is your stimulated emission। तो when we want to solve this equation further, so you can assume that कि at thermal equilibrium this stimulated absorption will be equal to stimulated emission, क्योंकि ये आपके पास absorption है और ये आपके पास क्या है? emission है। और दोनों किसकी हेल्प से हो रहे हैं? stimulated with the help of any external agency। stimulated का वर्ड भी मैंने आपको कल डिफाइन किया था। stimulated means we require some external agency to trigger atom from its initial position। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? stimulated absorption and this is your stimulated emission। तो at thermal equilibrium these two terms become equal। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो it becomes equal to 1। और अगर we put E2 minus E1 is equal to H mu, then this equation 2 become modified like this, right? A21 divided by B21 and न्यूमरेटर में प्रीवियस स्लाइड में भी आपके पास 1 था, यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको क्या पुट किया? 1 and here e की पावर h mu upon kt minus 1। So you can say this is equation third। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। Now this mathematical relation is nearly equal to a Planck's law। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, वो आपको डायरेक्ट यू हैव टू रिमेम्बर। ये आपके पास एक प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट प्लैंक्स। तो दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू दिस प्लैंक्स इक्वेशन गिवन बाय दिस प्लैंक्स बाय यूजिंग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है? डेंसिटी फंक्शन है, राइट? और अगर हम राइट हैंड साइड को भी देखेंगे तो मोस्टली पार्ट इज सेम। तो ये वाला जो पोर्शन, ये दोनों पार्ट क्या है? सेम है। और लेफ्ट हैंड साइड के ये दोनों पार्ट भी आपके क्या है? सेम है। तो यू कैन फाइंड दैट रेशियो ऑफ A21 डिवाइडेड बाय B21 दैट इज इक्वल टू दिस टर्म। एंड हियर A आपके पास क्या था? A21 वाज द spontaneous emission and B21 was the stimulated emission। So this is the ratio of these two Einstein coefficients। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 Einstein coefficients की बात की थी, B12, B21 and A21। और हमें इन तीनों के बीच में क्या निकालना था? We want to drive the relation between these three coefficients। तो यहाँ पे जो आपका फाइनली जो रिलेशन निकला, A21 divided by B21 that is equal to 8 pi h। H is here Planck's constant। Mu is the this is mu is the frequency of incident radiation and this is the absorption coefficient। Mu is absorption coefficient and here c is the velocity of the light, that is order of 3 into 10 raised to power 8 meter per second। So this is a relation between spontaneous emission to the stimulated emission। तो यहाँ पे हमने दो मैथमेटिकल रिलेशन की बात की। एक तो आपके पास ये मैथमेटिकल रिलेशन आ गया जो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से इसको कंपेयर किया है। और सेकंड हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन ये भी आ गया, क्योंकि ये भी तो आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट ही है। और एट थर्मल इक्विलिब्रियम हम क्या कह रहे हैं कि दिस rate of this stimulated emission absorption, this is absorption, so rate of stimulated absorption will be equal to rate of stimulated emission। So these are two mathematical relation for to drive the Einstein coefficient। This is the first relation, mathematical relation, and this is another mathematical relation। So this is very important and this is also a part of your syllabus ki what are the Einstein coefficient and how to drive the mathematical relation between Einstein coefficients। So before start to drive this relation, first you have to know about these three interaction processes, क्योंकि इनके अंदर आपके पास तीनों interaction processes का use हो रहा है, spontaneous absorption, spontaneous emission and stimulated emission। जब तक you are not able to understand these three processes, तब तक you are not able to define this mathematical relation। So basic understanding of these three interaction process is very
important, then only you are able to drive the mathematical relation between these three terms. और इन तीनों terms का जो relation है वो हमने किस relation की help से define किया, that is the Einstein relation, right? Do you have any doubt? Okay. तो अभी तक हमने बात की तीन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस की, एंड आफ्टर दैट वी ड्राइव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दीज थ्री इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस with the help of Einstein relation. Now our next topic is components of the laser, which is very important to understand the basic construction of any type of laser which are available in the market. So basically a laser have three different parts. First is the active medium or working substance. Second is a pumping source or energy source. And third is a optical resonator. So now we will discuss these three different components one by one. तो जो आपका एक्टिव मीडियम होता है, एक्टिव मीडियम और यू कैन से वर्किंग सब्सटेंस, तो बेसिकली this is a medium in which all types of atomic and molecular transition take place. और you can say transition होगा तो वहीं पे आपका you will get the laser action. So active medium को you can define, it is a medium in which laser action take place. कि उस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर आपका लेजर एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, दैट मीडियम इज कॉल्ड एक्टिव मीडियम. और लेजर एक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, बिकॉज लेजर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल स्टिमुलेटेड एमिशन. तो अदर वे यू कैन डिफाइन, इट इज अ मीडियम इन विच स्टिमुलेटेड एमिशन टेक प्लेस. सो बोथ आर सेम, कि या तो लेजर एक्शन हो रहा है और अदर वे यू कैन से कि स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है उस मीडियम के अंदर. So this medium is called active medium. Now, depending upon the type of laser, this active medium can be solid, it can be gaseous, it can be liquid or dye, or it can be semi-conducting laser. तो जैसा आपका active medium का nature होगा, that nature of that active medium decide the type of laser. As I told you, there are different types of laser are available in the market, like solid laser, gaseous laser, semiconductor laser, or we can say liquid laser. तो ये जो टाइप्स ऑफ लेजर हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली किस पे डिफाइन कर रहा है, किस चीज पे बेस कर, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, कि किस मीडियम के अंदर हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमिना टेक प्लेस हो रहा है. अगर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है इन द सॉलिड मीडियम, देन यू विल से कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड लेजर. और इफ अगर आपका स्टिमुलेटेड एमिशन का जो फिनोमिना हो रहा है इन द गैसियस मीडियम, देन यू विल से दिस इज अ गैसियस लेजर. और अगर वो सेमीकंडक्टिंग मीडियम में हो रहा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर. तो यू कैन से कि आपका जो एक्टिव मीडियम विल डिसाइड type of different laser, right? It can be solid laser, it can be gaseous laser, or it can be semiconductor laser. Next component is pumping source or energy source. तो यहाँ पे इसके नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि दिस इज अ सोर्स बाय विच वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. कि और एनर्जी हमें किस लिए देनी पड़ती है? टू मेंटेन, टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन. बिकॉज मैंने कल भी आपको बताया था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन is the mandatory condition for the laser action. Without the condition of population inversion, we are not able to achieve laser action. और population inversion किसकी हेल्प से अचीव होगा? by supplying some energy. जब तक हम कुछ एनर्जी नहीं देंगे तब तक we are not able to achieve the population inversion. So if we want to define the population inversion, so with the help of energy source, the system can be raised to the excited state. Because initially atom is present in the ground state, then it will jump to the excited state, and from excited state it come back to its metastable state, and from the metastable state से it want to come back its ground state. तो अगर आपका atom higher energy state से it want to come back to the ground state, then we require some energy, और we need to pump that system. उस system को हमें pump करना पड़ेगा. और pump
किसकी प्रोसेस से करेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पंपिंग सोर्स. पंपिंग प्रोसेस और यू कैन से पंपिंग सोर्स means we require some energy source to provide the population inversion, and that energy source is called pumping source. And this pumping source also depends upon the type of laser, कि आपका जो type of laser के ऊपर ये pumping source depend करेगा. If I share one more screen, तो यहाँ पे जो पंपिंग का जो सोर्स होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स वी कैन यूज इन डिफरेंट लेजर, बिकॉज हमें तो एनर्जी देनी है. एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी टाइप ऑफ सोर्स. लाइक इफ वी टॉक अबाउट ऑप्टिकल पंपिंग, तो अगर हम एनर्जी ऑप्टिकली दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन इन दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स और इन दिस टाइप ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग, आपका जो पंपिंग जो आपके पंपिंग एटम आर एक्साइटेड बाय द एक्सटर्नल ऑप्टिकल सोर्स. इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक ऑप्टिकल सोर्स यूज करना पड़ेगा टू एक्साइट द एटम. एंड ये जो ऑप्टिकल पंपिंग हम किसके अंदर यूज करते हैं? बेसिकली सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर यूज करते हैं. एंड सॉलिड स्टेट लेजर का एग्जांपल लाइक रूबी लेजर और NDYIZ लेजर. तो these are the example of these are the example of solid state laser in which we use optical pumping और you can say ऑप्टिकल सोर्स यूज करते हो. ऑप्टिकल सोर्स का एग्जांपल क्या है? लाइक जीनोन फ्लैश लैम्प. जीनोन फ्लैश लैम्प आपका एक ऑप्टिकल सोर्स का एग्जांपल है, और वो हम किस में यूज करते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग, दैट इज यूज्ड इन द सॉलिड स्टेट लेजर. और सॉलिड स्टेट लेजर में आपका एक्टिव मीडियम किस स्टेट पे होगा? दैट विल बी इन द सॉलिड स्टेट. सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिकल पंपिंग, कि हम एटम्स को एक्साइट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली भी एक्साइट करवा सकते हैं. तो इन दिस केस these electrons are accelerated by providing a strong electric field. हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे. then these electrons start to collide with neutral gas atom and they become ionized. और ionized होके they will due to ionization they will reach to its higher energy level, means वो excite हो जाएंगे. और these atoms are excited और accelerated with the help of strong electric field. इलेक्ट्रिकली भी हम उनको एनर्जी दे सकते हैं. और इलेक्ट्रिकली एनर्जी हम कौन से टाइप के लेजर में देते हैं? दैट इज इन द केस ऑफ गैसियस लेजर. और इसका जो एग्जांपल होगा लाइक हीलियम नियोन लेजर और CO2 लेजर. तो ये जो लेजर हैं, इनके अंदर वी यूज इलेक्ट्रिकल पंपिंग टू एक्साइट एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. अगर हमें उसको हायर स्टेट में पहुंचाना है तो वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिकल पंपिंग. एंड थर्ड इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन. तो डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर क्या होगा कि देयर इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. एंड ये जो डायरेक्ट कन्वर्जन हम कौन से टाइप के लेजर में करते हैं? लाइक इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेजर दिस एनर्जी सोर्स विल बी डिफरेंट. कि अगर आपके पास means this pumping source depend upon type of laser. कि if we are talking about solid state laser, then pumping जो energy source होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली होगा. if we talk about gaseous laser, तो आपका जो pumping source होगा that will be electrically. और अगर वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर लेजर, तो उसके अंदर हमारा जो पंपिंग सोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, कि उसके अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट होगा. डायरेक्ट हम एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेजर देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ पंपिंग सोर्स. नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर. ऑप्टिकल रेजोनेटर इज अ काइंड ऑफ कैविटी which protect for a or which helps for the good laser action. So it is kind of cavity, so you can say it is cylindrical tube की form में होता है. and it consists of two mirrors which are present at two different end. एक end इसका ये कह on the it consists of two mirrors. तो जो आपका फर्स्ट मिरर होगा दैट इज कंप्लीटली सिल्वर्ड, और आपका जो सेकंड जो आपका मिरर होगा दैट इज पार्शियली सिल्वर्ड. तो इट कंसिस्ट ऑफ मिरर व्हिच एक्ट्स एज अ रेजोनेटर.
नाउ व्हाट विल हैपन इन बिटवीन दीज टू मिरर, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों मिरर से मिरर के बीच में आपका सारा प्रोसेस हो रहा है, तो जो आपके फोटोज एमिट होंगे which are emitted parallel to the axis of active medium, they will go under multiple reflection, कि इन दोनों के बीच में क्या होता रहेगा, multiple reflection होता रहेगा, and at the end we will get the laser beam from this mirror M2. this is mirror M1 and this is mirror M2. तो at the end आपका जो laser beam multiple reflection होने के बाद हमें finally output कहाँ मिलेगी, from the mirror M2. अगर हम इसका complete diagram अगर हम बात करना चाहें complete इसके diagram की, so you can see like this. This is a complete block diagram of the laser component, कि ये आपका बीच में active medium रहता है. This is your active medium, और active medium को हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं with the help of pumping process. जो अभी हमने बात की pumping process, it can be optical pumping और it can be electrical pumping और it can be direct pumping. तो यहाँ पे इस एक्टिव मीडियम को हमने क्या दिया, एनर्जी दिया, कि आपके जो एटम है दे बिकम एक्सेलेट और दे बिकम एक्साइटेड, और जब आपके एटम एक्साइटेड हो जाएंगे means they are able to achieve the population inversion, and after population inversion there is a formation of laser beam. तो ये आपके जो मिरर M1 और M2 है, these are the two mirror which form the resonator cavity. जो मैंने थर्ड कंपोनेंट की बात की है, तो ये दोनों मिरर मिलके आपके क्या बनाएंगे, रेजोनेटर कैविटी बनाएंगे. and this mirror M1 is totally reflecting mirror and this mirror M2 is partially reflecting. You can say this is 100% reflection यहाँ मिलेगा, and here you will get around 95 to 97% reflection. And after the multiple reflection between these two mirror, at the end we will get this laser beam from this mirror M2 in the form of a output. यहाँ पे हमें finally क्या मिल जाएगी, laser beam मिल जाएगी. तो this is a complete block diagram regarding the component of laser system, कि लेजर के अंदर कोई भी, अब हम किसी भी लेजर के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो हम उसके एक्टिव मीडियम की बात करेंगे कि एक्टिव मीडियम का नेचर कैसा होगा. सेकेंड हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हम एनर्जी सोर्स दे रहे हैं वो किस टाइप का हम एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, और तीसरा हम किसकी बात करेंगे, रेजोनेटर कैविटी की बात करेंगे. तो दीज आर थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स for the construction of any laser. It can be your it can be your solid state laser, it can be your gaseous laser, और it can be your semiconductor laser. तो किसी भी लेजर की बात करेंगे तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमें डिस्कस करने होंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ these three components of a laser. Now next we will discuss about levels of the laser. Levels of the laser, that your laser can be either 3 level laser or it can be your 4 level laser. तो लेवल हम कैसे डिफाइन करें कि आपका लेजर 3 लेवल लेजर होगा या 4 लेवल लेजर होगा. तो this is your ground state and this is excited state and this is the metastable state. So with the help of this stimulated absorption, atom will reach from ground state to excited state, and because of small lifetime of this excited state, they will reach or they will jump to this metastable state with the process of spontaneous emission. यहाँ पे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, stimulated absorption का प्रोसेस हो रहा है, and here we have process of spontaneous emission and here we have process of stimulated emission. तो from level E2 and E1 के बीच में हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, stimulated emission हो रहा है. तो in between these two levels there is a condition of population inversion completely defined, and here we will get the लेजर बीम. तो यहाँ पे हमें लेजर बीम मिल रहा है. तो मीन्स यू कैन से कि यहाँ पे आपके पास कितने लेवल्स हो गए, कितने एनर्जी लेवल्स की हमने बात की, E1, E2 एंड E3. वी हैव 3 एनर्जी लेवल्स. कि फर्स्ट इज योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, सेकेंड इज अ हायर एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड इज अ मेटास्टेबल स्टेट. तो आपके जो लेवल ऑफ द लेजर मीन्स वी हैव 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, क्योंकि आपके जो एटम्स हैं उनको 3 डिफरेंट स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है
for a complete laser action. If I ask to you कि is two level laser is possible, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे ये मेटास्टेबल स्टेट की बात ना करूं, we have only two energy state. First is a ground state and second is a excited state. So do we get the laser action? Yes, बताइए, क्या हमें लेजर एक्शन मिलेगा इफ आई टॉक अबाउट ओनली टू लेवल लेजर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। यस, ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और एनी अदर स्टूडेंट? Because from the first day I am telling you, stimulated emission is a mandatory condition. That is the principle of laser. लेजर एक्शन का प्रिंसिपल ही आपका क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन है। और जब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू अचीव द लेजर एक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे मेटास्टेबल लेवल को रिमूव कर दूं, वी हैव ओनली टू लेवल्स, दैट इज द ग्राउंड स्टेट लेवल एंड एक्साइटेड स्टेट लेवल। तो वी आर नॉट एबल टू अचीव द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो टू लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली कई बार आपसे कहीं आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टू लेवल लेजर? तो आपका जो टू लेवल लेजर है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टू लेवल लेजर के अंदर वी आर नॉट एबल टू अचीव द कंडीशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि इज स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल? स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, yes, please reply to me. Spontaneous absorption possible है? Yes, no, कुछ भी बताइए, right, wrong? नो मैम। Yes, आपने सही बताया, नहीं होता है spontaneous absorption. Can you tell me what is the reason behind it? क्योंकि मैम जो एटम है वो स्टेबल रहना चाहेगा, तो एक्साइटेड नहीं हो, अपने आप एक्साइट नहीं हो पाएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बिकॉज everyone want its stability. अगर इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर, हम भी यही चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें। तो जब तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें कोई एनर्जी नहीं देगा, तो वी डोंट वांट टू मूव अवर स्टेबिलिटी। तो उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? उसको कुछ एनर्जी देके। और जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे, वो तो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। यू डोंट वांट टू जंप। तो मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी इट कैन नेवर गो टू इट्स हायर एनर्जी स्टेट। वो कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कैन नेवर बी पॉसिबल। ओनली स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन कैन नेवर बी पॉसिबल। अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से, देन ओनली इट विल जंप टू द हायर एक्साइटेड स्टेट। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है या नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नो। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि टू लेवल लेजर के बारे में पूछा जाता है कि टू लेवल लेजर आपका पॉसिबल है या नहीं, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? नो रहेगा। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जो हम ऑर्डिनरी जो बल्ब की बात करते हैं, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करी हमने, और एक हमने लेजर सोर्स की बात की, राइट? वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। वन इज योर ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकंड इज योर लेजर सोर्स ऑफ लाइट, राइट? तो लेजर के अंदर मैंने आपको बताया कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, कि स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होता है तभी हमें लेजर बीम मिलता है। तो हम जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, तो इसके अंदर कौन सी इंटरेक्शन प्रोसेस, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट? अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं, तो इसके अंदर जो हमारा एमिशन, जो हमें लाइट मिल रही है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर द सोर्स ऑफ लाइट out of these three interaction processes which I discussed in the previous class? मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? Do you understand what I want to ask? Should I repeat the question? नो मैम।
क्वेश्चन समझ आया मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? बताइए यस और नो में रिप्लाई करिए कि मैं क्वेश्चन को रिपीट करूँ, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मैं आपसे क्या रिप्लाई चाहती हूँ? मैम आ गया समझ। क्वेश्चन समझ आ गया है? ओके, तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हो वो इनकोहेरेंट होता है, कि उसके अंदर जो भी आपके पास रेडिएशन एमिट होगी दे डोंट हैव सेम फेज, कि उनका जो वो ट्रैवल करेंगी तो वो उनका सेम फेज नहीं रहेगा, दे डोंट हैव सेम वेवलेंथ, दे डोंट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर नॉट इन सेम फेज, मींस they are not coherent or you can say they are incoherent. तो वो अगर इनकोहेरेंट है तो उसके अंदर हम तीनों इंटरेक्शन प्रोसेसेस, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ कि हमारे पास तीन इंटरेक्शन प्रोसेसेस की हमने बात की है. फर्स्ट इज द इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, stimulated absorption you can say, second is the spontaneous emission and third is the stimulated emission. तो इसमें से कौन सा होगा? एमिशन तो होगा, एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, और एब्जॉर्ब एमिशन में से कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा? स्टिमुलेटेड एमिशन भी नहीं हो सकता बिकॉज स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर वी रिक्वायर द कोहेरेंट फोटॉन्स, कि आपके पास जो भी आउटपुट मिलेगी वो कोहेरेंट होनी चाहिए. बट जो आपका ऑर्डिनरी बल्ब है उसके अंदर हमारे पास वो स्कैटरिंग होती है, स्प्रेडिंग होती है, तो उसके अंदर जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, दे आर इनकोहेरेंट. तो इसका जो प्रिंसिपल होगा that will be based on the process of spontaneous emission, right? Because it emits a number of photons quickly. इसके अंदर बहुत सारे photons एक साथ emit होंगे and they don't have same phase, उनका phase same नहीं रहता है, तो same phase नहीं रहता है तो means they are incoherent. वो incoherent है तो वो उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? that is based on the principle of spontaneous emission. तो मीन्स वी हैव टू, अगर हमारे पास टू सोर्सेज ऑफ लाइट है तो जो आपका ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट होगा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड इफ आई टॉक फॉर द लेजर बीम then it is based on the principle of stimulated emission, right? समझ आ गया? हेलो स्टूडेंट्स, getting my point? hello, getting my point? okay, all right. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लेजर. तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स की बात करेंगे इन द कंप्लीट, तो कुछ आपके जो लेजर होंगे दैट विल हैव 3 लेवल और फ्यू लेजर विल हैव 4 लेवल. तो या तो आपका लेजर का 3 लेवल पॉसिबल है या फिर 4 लेवल पॉसिबल है. तो 3 लेवल होंगे तो कौन कौन से लेवल होंगे? फर्स्ट विल बी द ग्राउंड स्टेट, सेकेंड इज द एक्साइटेड स्टेट एंड नेक्स्ट इज द मेटास्टेबल स्टेट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द 4 लेवल लेजर, तो 4 लेवल लेजर के अंदर we will have, first will be the very initial level, that is a ground state. Second will be your excited state level, and after that in between these two we will have 2 levels. First will be that metastable state और सेकेंड आपका क्या रहेगा? इंटरमीडिएट स्टेट रहेगा. इसको कुछ और नेमिंग या लेवलिंग भी आप कर सकते हो, डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, रेफरेंस बुक्स के अंदर इसका कुछ और लेवलिंग भी कर सकते हैं, बट एज जर्नल यू कैन से दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल. तो ये आपके पास 4 लेवल्स होंगे. और जब आपके पास 4 लेवल्स होंगे तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से 2 लेवल्स के बीच में आपका लेजर बीम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा? कौन से 2 लेवल्स के बीच में वी विल गेट द लेजर आउटपुट? तो आपके जो लेजर आउटपुट हमें कौन से 2 लेवल्स के बीच में मिलेगी? दैट इज इन बिटवीन लेवल E2 एंड E3, and that we will discuss in detail in the coming lectures, जब हम उसका पूरा लेजर का प्रिंसिपल उसका वर्किंग पढ़ेंगे. देन आई विल टेल यू कि व्हाई लेजर एक्शन इज टेक प्लेस ओनली इन बिटवीन दीज 2 लेवल्स. अगर मैं इस लेवल और E1 और E3 की बात करूंगी तो इन दोनों लेवल्स के बीच में लेजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई लेजर एक्शन इज पॉसिबल ओनली इन बिटवीन दीज 2 लेवल? तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि अगर हम 4 लेवल की बात करेंगे तो लेजर एक्शन कौन से 2 लेवल्स के बीच में होगा? लेवल E2 एंड E3, बिकॉज population inversion is
able to maintain only between these two levels. तो जहाँ पे population inversion अचीव होगा उन दोनों levels के बीच में हमें क्या मिलेगा, लेजर बीम मिलेगी. तो यहाँ पे इसका सिंबल दिखा है कि we are able to radiations in between these two level. और अगर हम 3 लेवल के बीच लेवल लेजर की बात करेंगे तो आपके पास आउटपुट या लेजर बीम कौन से 2 लेवल्स के बीच में मिलेगी, बिटवीन लेवल E1 एंड E2, बिकॉज आपके पास यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन से 2 लेवल्स के बीच में मेंटेन हो रहा है, दैट इज लेवल 1 एंड लेवल 2. तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन द 4 लेवल लेजर in between in which two levels that laser will emit or population inversion will achieve. तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि E1 E4 के बीच में रहता है, या फिर E1 E2 के बीच में रहता है, या फिर E2 E3 के बीच में रहता है, या फिर E1 E2 के बीच में रहता है. तो करेक्ट आंसर इज बिटवीन E2 एंड E3. इन दोनों के लेवल्स के बीच में हमारा लेजर एक्शन रहता है, राइट? Next is different types of laser. First is a solid state laser. Second is the gaseous laser. Next is the dye laser, liquid laser. और उसका जो example है that is a dye laser. And next is a semiconductor laser. And I also told you कि these different types of laser depends upon the nature of active medium. तो अगर हम यहाँ पे solid state के अंदर बात करेंगे तो here active medium will be in the solid state. And here active medium will be in the gaseous state, and here active medium will be in the form of liquid state, and here active medium will be in the form of semiconducting state, right? ये तो हमने active medium के नेचर की बात की. और अगर मैं यहाँ पे पंपिंग या एनर्जी सोर्स की बात करूंगी तो बताइए सॉलिड स्टेट के अंदर हमें किस तरह की एनर्जी देनी पड़ेगी. अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड नंबर 5th या 6th में. Optical. Yes, all right, very good. And if I talk for gaseous laser, so which type of energy we required? Electrical, ma'am. Electrical energy, very good. And semiconducting laser में? Semiconducting direct conversion, very good, बहुत अच्छे. And आपका जो डाई लेजर और जो लिक्विड लेजर होता है उसके अंदर भी हमें, I forget to tell you, उसके अंदर भी we require the electrical energy. कि we require electrical energy और electric field as a source of energy. कि आपको एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो हमें किस तरह की एनर्जी चाहिएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ से आपको बेसिक एक आपका माइंड मेकअप बन गया है कि आपके पास सॉलिड स्टेट लेजर आया तो मीन्स मेरा जो एक्टिव मीडियम होगा वो सॉलिड्स की फॉर्म में होगा, और जो मुझे एनर्जी देनी है वो किस फॉर्म में देनी है, इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सोर्स की फॉर्म में देनी है. तो यू आर मेंटली प्रिपेयर, बिकॉज अभी इससे जस्ट पहले हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर, बिकॉज विदाउट मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर you are not able to understand the basic construction of the laser. So main components of the laser is very important to discuss about the basic construction of any types of laser. तो यहाँ पे हमने इनके एक्टिव मीडियम की बात कर ली है और हमने इनकी एनर्जी सोर्स की बात कर ली कि एनर्जी सोर्स किस तरह का होगा, एंड व्हाट अबाउट द एक्टिव मीडियम, राइट? और जो आपका ऑप्टिकल कैविटी है दैट विल रिमेन सेम इन ऑल टाइप ऑफ लेजर. उसके अंदर तो सिर्फ हमारे पास 2 मिरर ही होते हैं, एक मिरर M1 होता है एंड सेकंड इज मिरर M2. मिरर M1 आपका कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है एंड सेकंड मिरर M2 इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. तो यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट्स की बात कर ली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर. तो यू आर मेंटली प्रिपेयर कि what will be the basic construction of these different types of laser, right? Now next is should I continue or should I stop and continue in the next week? Hello students, I think I should stop now because time is almost over, and now in the next week we will start construction and working of different types of laser. जो अभी हमने ये 4 जो लेजर की बात की है इनकी जो बेसिक जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होगी उनकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, और जो अभी हमने
3 लेवल्स या 4 लेवल्स की बात की है कि इसके अंदर 3 लेवल्स होगा या फिर 4 लेवल्स होगा, उसकी हम बात करेंगे कि इसके अंदर 3 लेवल है तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, या फिर अगर आपके पास 4 लेवल है तो उसके अंदर एटॉमिक ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीक में वी विल डिस्कस इन द डिटेल। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ. So it's time for questions. So do you have any doubts in today lecture? So you can discuss with me. No, ma'am. No, ma'am.